Hello, my dear friends. Let us discuss today the oxidation states of group number 15 elements. So, before starting the oxidation states of group number 15 elements, we should know some basic concepts regarding oxidation states. And these concepts are: first, you should know the general electronic configuration is inert gas NS2 NP3. Means to complete the p orbital or to attain the electronic configuration like inert gas, p require 3 more electrons, then it becomes ns2 np6. If element attain 1 electron, then oxidation state is -1. If 2 electron, then -2. In this case, the electronic configuration becomes S2P4 if 1 electron accept. Here becomes S2P5. If third electron is attained, then it becomes S2P6. Then another thing you should know, the valence electrons of group number 15 elements are 5. See this 2 plus 3, 5. They are the outermost electrons. If 1 electron is donated, then electronic configuration is +1 and it becomes S2P2. If second donated, then oxidation state is +2 and the electronic configuration will be S2P1. Like that, third electron donated, then +3 oxidation state and electronic configuration becomes NS2 NP0. If fourth donated, then NS1 NP0, and all 5 donated, then NS0 NP0. Is it clear? In all group, this will be the concept of oxidation state. Another thing you should know, the stability of orbital, that already you studied in 11th standard. If any orbital is half filled, completely filled, if that orbital is vacant, in all these cases, the orbitals are stable. For example, if we consider s orbital, then s1, s2, s0, in all case it is stable. If we consider p orbital, then p0, half filled, p3 and p6 stable. If we consider d orbital, then d0, d5, d10, then these three cases are stable. If f we consider, then f0, f7, f14, these three conditions are stable. So let us move to the group number 15. Write down first general electronic configuration. Once again, inert gas NS2 NP3. So all possible oxidation state I explained you, that is -1, -2, -3. If successively these 3 electrons, in p orbital 3 electron accepted. If successively these 5 outermost electron donated, then +1, +2, +3, +4 and +5 oxidation states are possible. So these are, I am not telling you the exist oxidation state, but these are the possible oxidation states. Out of this, if we consider the stability concept, then observe these 3.
-3. -3 means 3 electron accepted. In that case, the electronic configuration becomes NS2np6. It is a stable one. If you consider this +3, then this 3 electron donated to s orbital is completely filled, p orbital becomes vacant. Both become stable. If you consider this +5, then in that case, the electronic configuration becomes NS0 and P0, means stable, both vacant. If you consider this +4, then electronic configuration becomes NS1 and P0. In this case also, both orbitals are stable. See, out of these 4 stable oxidation states, this 4 stable oxidation state, this +4 is not shown by all elements. First element, due to anomalous behavior of that +4, is exists stable, but not all element shown, because we are discussing regarding the general oxidation states of all elements. Okay, so these are listed possible oxidation state, and the rounded are the stable oxidation state. Among them all are not shown +4 oxidation state without any reason, because in nature not exist all element +4. तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस concepts, write down question, write a note on oxidation states of group number 15. For any group, to decide the highest oxidation state, there is a one formula, group number -10. If group number 15 is there, then -10, highest oxidation state is +5, as I shown you. Group number 16 -10, highest oxidation state is +6. 17 -10, highest oxidation state is +7. 18 -10, highest oxidation is +8. Similar way you studied in 11th standard, highest oxidation state of group number 13 is +3. Highest oxidation state of group number 14 is +4. And this is the formula, group number -10. So, see the 3 points I have written according to my explanation. So, highest oxidation state is nothing but +5 by using formula. See, highest oxidation state, group number -10 +5. Possible oxidation states are, I explained you, -1 to +5. Among them, this 3, -3, +3, +5 observed stable. +4 is also stable but not observed in any element, and there are no reasons for it. Not exist in nature, so what can we do? Okay, +4 should be exist, but except nitrogen, not in other element +4 is observed. So for all elements we cannot write +4. Here we are describing regarding all elements. So majority oxidation state, majority in the sense we can say the stable oxidation state. Majority means in place of majority you can write stable also. The stable oxidation states are -3, +3 and +5. Another one clue is, whenever group number is odd, then stable oxidation states are odd. Whenever group number is even, then we will see that the stable oxidation state will be even. Okay, that is the one coincidence, and it will be easy for you to remember. See, odd oxidation state, group number odd. Let us discuss about the periodicity of the oxidation states. So periodicity, as we move down the group, as atomic number increases, the stability of -3 oxidation state decreases. And as you know that metals never show the negative oxidation states. Okay, so in P block down the group, reason I have given here, due to down the group non-metallic character decreases, metallic character increases. So as metallic character increases, the tendency to show the negative oxidation state decreases. It is
easily understandable. In place of, in spite of, bismuth is typical metal. So in some cases, somewhere, if bismuth observed as a -3 oxidation state may be possible, because it is a p block element, so it has a not that much tremendous character of metallic property. Okay, so sometimes in some cases bismuth observed as a negative oxidation state, then we can say that compound is not that much stable, that we have to preserve. Okay, so this is a good thing for competitive exam. Sometimes you are asked which of the following bismuth compound is highly unstable. So if unstable oxidation states are observed in any compound, then that one is your answer. Okay, but majority metals, see here I have drawn one table. So in this case, from nitrogen to arsenic, negative oxidation state observed, but antimony to bismuth, negative oxidation state not observed. This is not 100% true. Sometimes in some cases exception observed, but don't worry, it is not in our syllabus. Okay, antimony is a semi-metal, arsenic is a semi-metal, but in semi-metal some non-metallic character is there. So here in arsenic -3 is observed, but in antimony in majority cases not observed. Bismuth is typical metal, so negative not observed. Okay, so let us start from the next point. And uh, next periodicities, as we move down the group nitrogen to bismuth, stability of +5 oxidation state decreases and stability of +3 oxidation state increases, and the reason is due to inert pair effect. Inert pair effect was there in 11th standard, also in group number 13 and 14. I hope that you know very well inert pair effect. In spite of, let us discuss uh, in short the concept of inert pair effect. See, this is the nucleus, and in nucleus proton and neutrons are present, electrons are revolving around nucleus, so attracted with nucleus. See, this is nucleus, orbital number 1, 2, 2 means principal quantum number 2, this is 3, 4. So here only s orbital present, here sp present, here spd present, here spdf present. Suppose this one is the outermost orbit, so electronic configuration is s2p3. Down the group, you know very well the screening effect increases, but the majority size increases due to increase in principal quantum number. Another thing keep in mind, the screening effect order is highest of S, then the P, then D, and the lowest screening effect if is F, even if 10 electron present here and 14 electron present here. Why with respect to S and P the screening effect of D and F orbital is poor? Because they are bigger in size. मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर सर्कल 10 आदमी का सर्कल है, उसको हम छोटा कर दें तो बीच में जो आदमी है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो बाहर वाला जो है उसको देख नहीं पाएगा, मतलब कि वो पूरा शील्ड हो जाएगा। लेकिन वही 10 आदमी को हम बड़े राउंड में लगा दें तो जो बाहर खड़ा है उसको, जो सेंटर वाला आदमी है वो आराम से दिखाई देगा। तो मैं ये नहीं बोलता कि डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आती है, एफ की स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं आती है. ड्यू टू द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, देयर
स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर। सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं देखना है, ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन का भी ऑर्डर देखना है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की स्क्रीनिंग लगती है, 6 इलेक्ट्रॉन की लगती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है लेकिन साइज छोटी है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनकी स्ट्रोंग होती है। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर पुअर होगी। तो आपने 11th में पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एस इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड towards nucleus with respect to p, p is more attracted with respect to d, d is more attracted with respect to f। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड रहती है s किसी भी ऑर्बिट में। तो अब जो है ये सब यहाँ पे एस पी और डी की स्क्रीनिंग इफेक्ट है, लेकिन डी एंड एफ बड़ी है तो पुअर है। तो ये पी का तो अट्रैक्शन जो है पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के साथ इतना होता नहीं है, लेकिन ये एस ऑर्बिटल का ज़्यादा होता है। एक तो अब जो मैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट बोल रहा हूँ वो सिर्फ एस के ऊपर ही इफेक्ट करेगी, पी ऑर्बिटल के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। उसको तो वो शील्डिंग इफेक्ट लगेगी क्योंकि उसका अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उसको सेंटर वाला आदमी इतना पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एस के हैं उस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बढ़ता जाता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, उसकी टेंडेंसी बाहर निकलने की नहीं रहती। सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप अट्रैक्शन बढ़ता जाता है तो ये इनर्ट हो जाते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये इनर्ट हो जाने की वजह से हम इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो ये ऊपर से 5 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, डाउन द ग्रुप सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इसको बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखिए टेबल में इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डाउन द ग्रुप as atomic number increases, stability of +5 oxidation state decreases and stability of +3 oxidation state increases। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे -3 तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ +3 है लेकिन इतना स्टेबल, सॉरी, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +5 है लेकिन इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे हम नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाते हैं तो +5 की स्टेबिलिटी घटती जाती है, और यहाँ पे तो +5 है ही नहीं, सिर्फ +3 है। मतलब कि यहाँ पे अगर कहीं पे +5 दिखाई देता है तो वो हाईली अनस्टेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कंपाउंड दिखाई नहीं देता है। कोई कोई कंपाउंड अगर रेयर केस में मिलता है तो वो एक्सेप्शन होता है, और वही एक्सेप्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। यहाँ पे हाईली स्टेबल होता है, यहाँ मीडियम स्टेबल होता है, यहाँ अनस्टेबल होता है, यहाँ तो है ही नहीं तो हाईली अनस्टेबल होता है +5। जैसे जैसे नीचे जाते हो तो यहाँ +3 स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। वो क्या है मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब अपने आगे वाले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो डाउन द ग्रुप ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन है एक्सेप्शन। ये BI बिस्मथ पेंटाफ्लोराइड जो है BiF5, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रहा है। तो ये एक कंपाउंड ऐसा है जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। हालांकि बिस्मथ का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईली अनस्टेबल है, फिर भी एक कंपाउंड हमें देखने को मिलता है, वो है BiF5। ठीक है, अब बात करता हूँ कि हम लोगों ने 15 ग्रुप में डिसाइड किया ये 3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट
Due to anomalous behavior of nitrogen, in periodic table you already have studied that first element in each group shows anomalous behavior. In nitrogen, nitrogen shows +1, +2 and +4 oxidation state in its oxides. सिर्फ उनके ऑक्साइड में ये देखने को मिलते हैं, इसका कोई रीज़न नहीं है. हम रीज़न दे सकते हैं ड्यू टू द एनोमलस बिहेवियर एंड स्मॉलेस्ट साइज ऑफ नाइट्रोजन, और बोलना चाहे तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन. ओके, जैसे मैं ऑक्साइड यहाँ पे लिखूँ तो NO नाइट्रोजन मोनोक्साइड, डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड, NO2 लाइक दैट. यहाँ पे आप देखिए +2, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, यहाँ +3, यहाँ +4 और यहाँ भी +4. देखिए, हालांकि इसको तो समझ पाते हैं कि ये स्टेबल है, ये भी चलो स्टेबल है, +1 +3 स्टेबल, तो ये 3 ही है, तो +1 को भी छोड़ दो. तो एक ही ऐसा है कि डाइनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड में एक स्टेबल आ रहा है, बाकी +4 +4 +2 +1 हम स्टेबल नहीं गिन रहे हैं. ठीक है, फिर भी नाइट्रोजन में देखने को मिलता है और सिर्फ उनके ऑक्साइड्स में. ये भी आपको इसमें देखना है, ध्यान में रखिएगा. ये उसका एनोमलस बिहेवियर में आएगा. क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि ये अपने ग्रुप से थोड़ा हटके चल रहा है. और अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कैन नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ हेलोजन. इसका रीज़न है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. ऐसा क्यों है? तो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JEE मेन में काफ़ी बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन हेलोजन इज नॉट पॉसिबल. नाइट्रोजन ट्राई हेलाइड इज पॉसिबल, नाइट्रोजन पेंटा हेलाइड इज नॉट पॉसिबल. आप 11th में एक चैप्टर पढ़े और वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर. उसमें एक हाइब्रिडाइजेशन आता था, टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स आते थे, AB2 AB2E AB3E लाइक दैट. तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो सीधा मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बता दूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर ये एग्जिस्ट होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d. तो अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का देखो तो आता है 22 2s2 2p3. तो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में d ऑर्बिटल है ही नहीं, तो sp3d कैसे पॉसिबल? ओनली sp3 पॉसिबल है क्योंकि s एंड p है सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, सेकंड ऑर्बिट में. तो इसका रीज़न ये है कि वाई ट्राई हेलाइड ऑफ नाइट्रोजन पॉसिबल बट पेंटा हेलाइड नॉट पॉसिबल. नाइट्रोजन की आगे बात करेंगे कि अगर नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड आप ले लो और उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 टू +4, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है +3, आप ले सकते हो +1 +2 +3 +4, कोई भी +1 टू +4. तो ऑलवेज दैट कंपाउंड शोज डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन एंड मीडियम मस्ट बी एसिडिक. जैसे कि मैंने एक कंपाउंड लिया जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 टू +4 के बीच में आ रहा है, या तो +1 भी ले सकते हो +4 भी ले सकते हो. ठीक है, तो ये नाइट्रस एसिड, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3. अब जब इसका रेडॉक्स रिएक्शन, तो ये यही कंपाउंड एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा. जैसे कि एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम +3 टू +5, इंक्रीज बाई 2, मीन्स ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन. ठीक है, अब वही कंपाउंड जो है वो नाइट्रस एसिड में से नाइट्रोजन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यहाँ पे +2. ठीक है, तो डिक्रीज बाई 1, तो ये रिडक्शन आता है. तो in redox reaction you already studied, if the same compound undergo oxidation as well as undergo reduction, that
then that reaction is called disproportionation redox reaction. तो नाइट्रोजन जो है वो ये, इसमें आप देखें तो ये +3 +5 स्टेबल है, लेकिन ये +2 वाला स्टेबल नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन डिस्प्रपोर्शनेशन, अब हम ये देखेंगे कि फॉस्फोरस जाता है कि नहीं जाता है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रपोर्शनस इनटू +5 एंड -3। कोई भी ऑक्सीडेशन इसके अलावा आप ले लो, यहाँ पे मैंने लिया है फॉस्फोरस P4, ठीक है। तो यही फॉस्फोरस में से फॉस्फोरिक एसिड बनता है, तो इंक्रीज बाई 5, तो ये ऑक्सीडेशन है। यही फॉस्फोरस में से फॉस्फीन बनता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3, सो डिक्रीज बाई 3, तो ये वाला जो है वो रिडक्शन है। तो सेम फॉस्फोरस, ये कंपाउंड जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये दोनों स्टेबल है। तो इसमें आप देखें तो सेम कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये दोनों स्टेबल में जा रहा है, +5 -3। हालांकि 0 जो है वो तो एलिमेंटल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ और भी कंपाउंड आप ले सकते हो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और -3 के अलावा, ऐसा एक रेडॉक्स रिएक्शन भी था 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पे देखिए ये स्टेबल है, तो स्टेबल टू स्टेबल ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन +3 to +2 ऑक्साइड में काफ़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब ऑक्साइड बनेगा तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का पॉजिटिव पॉसिबल है, +1 +2 +3 +4 एंड +5। तो फॉस्फोरस की बात हो गई। चलिए अब और 3 की बात करते हैं, वो है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो उसका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तीनों का, वो +3 है, क्योंकि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे हम कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेते हैं तो +3 to +5 नहीं जाएगा, तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि +5 स्टेबल नहीं। हाँ, +3 से +1 जाएगा तो रिडक्शन पॉसिबल है। +3 से +1 जाएगा, 0 जाएगा, तो डिक्रीज बाई 2, डिक्रीज बाई 3, रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। +3 to +4 तो स्टेबल नहीं है, +5 स्टेबल है, लेकिन डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो ये 3 एलिमेंट जो है उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। और एक बढ़िया बात, नाइट्रोजन, ये भी एनोमलस बिहेवियर है। नाइट्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट कोवैलेंसी ग्रेटर देन 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। व्हाई नॉट ग्रेटर देन 4? क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं। ठीक है, कोवैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में आप C.N लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऐसा क्यों नहीं है, मैं दिखाता हूँ। मैक्सिमम कोवैलेंसी अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp, sp2, sp3। तो इसमें नाइट्रोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन के पास s और p दोनों ऑर्बिटल है। अगर कोवैलेंसी ऐसे बढ़ जाती है ग्रेटर देन 4, मतलब 5, 6, 7, तो हाइब्रिडाइजेशन आने लगता है sp3d, sp3d2, d2sp3, dsp2। ये सब हाइब्रिडाइजेशन ऐसे हैं जिसमें हमें डी ऑर्बिटल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, तो नाइट्रोजन के पास तो है नहीं डी ऑर्बिटल, देन कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन नॉट पॉसिबल, इक्वल टू 4 तक पॉसिबल। चलिए, अदर एलिमेंट कैन एग्जिबिट कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर ग्रेटर देन 4, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल है। तो मैंने जो ग्रेटर वैलेंसी वाले हाइब्रिडाइजेशन बताए वो सब यहाँ पे पॉसिबल है।
एक एग्जाम्पल है बढ़िया, NF6 माइनस नॉट पॉसिबल बट PF6 माइनस पॉसिबल। ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप 11th स्टैंडर्ड की मेथड से निकालेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2। अब आप सोचिए कि नाइट्रोजन के पास डी है नहीं तो ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है तो ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिटल वैकेंट है क्योंकि फॉस्फोरस में आता है 3s2 3p3, तो ऑन ऑन थर्ड ऑर्बिट डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। हालांकि वैकेंट है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आपको बताया था कि जैसे हम डिस्कशन करेंगे तो हर एक मोड पे हमें ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ कि नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। एक एग्जांपल दिया NH4+। ठीक है, तो ये NH4+ कैसे एग्जिस्ट होता है वो देखिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल होता है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालें बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ 11th स्टैंडर्ड तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा इन लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। देखिए, तो ये टोटल हुआ 3 and 1s, तो टोटल हुआ 4। सो 4 बॉन्ड मैक्सिमम पॉसिबल। अब 4 से बढ़ना है तो हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता जाएगा, sp3d आएगा, तो d तो है नहीं तो हम सोच नहीं सकते। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैन मेक मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, कोवैलेंसी इज 4 और यू कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ये जो मैं एग्जांपल दिया है ना, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉट पॉसिबल। कॉम्प्लेक्स हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो अब आपको ये पूरा टेबल तैयार करना है। टेबल के हिसाब से भी आप जा सकते हो, पहले भी टेबल ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेबल में देख के आप बता सकते हो। तो देखिए, ये नाइट्रोजन exhibit all oxidation states due to its oxide -3 to +5। यहाँ से सिर्फ स्टेबल आता है -3 +3 +5। SB में माइनस निकल जाता है क्योंकि डाउन द ग्रुप मेटालिक प्रॉपर्टी increases, non metallic property decreases, so to tendency to show negative oxidation state decreases। और ये टिपिकल मेटल है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100% नेगेटिव नहीं दिखाएगा, 100% +5 नहीं दिखाएगा, लेकिन मेजोरिटी नहीं दिखाएगा। अगर कहीं पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है तो आपको याद रखना है कि ये एक्सेप्शन है, एंड दैट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर इन केमिस्ट्री। ओके, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो खास पिन पॉइंट आपको करना है। वो कम क्वेश्चन में गुजकेट में भी और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो तो डाउन द ग्रुप आपको +5 जो है लास्ट में नहीं दिखाई देता है। ये +5 है जो स्टेबल है, ये जो है अनस्टेबल है, ये +5 है, इससे ज़्यादा स्टेबल है बट फॉस्फोरस से अनस्टेबल है। तो तीनों में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में +5 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, आर्सेनिक ग्रेटर देन एंटीमनी ग्रेटर देन बिस्मथ। ठीक है, ये दोनों सेमी मेटल है, ये मिड मेटल है, बट डाउन द ग्रुप ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। हालांकि यहाँ दोनों में आर्सेनिक और एंटीमनी में एग्जिस्ट है, लेकिन एंटीमनी में अनस्टेबल है, बिस्मथ से उससे ज़्यादा अनस्टेबल है, आर्सेनिक में थोड़ा कम अनस्टेबल है, लेकिन जितना +3 स्टेबल है उतना +5 स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा, ओरली लिख के एक बार सबमिट करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पर्सनली फ़ोन करके मुझे पूछ लीजिएगा। तो कुछ 11th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट की हेल्प लेके मैंने ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ईजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश
की है। ठीक है, ध्यान से देखिए, उसके बाद इसकी PDF में से ये नोट कर लीजिए और प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।